अस्सलाम वालेकुम। हस्तनीस्त में आप सबको खुशामदीद एंड सॉरी फॉर द डिले। हस्तनीस्त के अंदर रवायती उलूम व फ़नून के बारे में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कराए जाते हैं, डिप्लोमास होते हैं। ये सेशन इब्न मुकला सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स के अंडर आता है, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, कैलीग्राफी, तज़हीब, मिनिएचर पेंटिंग, फ्रेस्को और ईब्रू के बारे में मुख्तलिफ डिप्लोमास और कोर्सेज़ कराए जाते हैं। Hizber is somebody who has dabbled in multiple art forms in the traditional arts. So I would like him to introduce the miniature department specifically, and then the artists as well. My name is Hizber और शायद माहम भूल गई अपना नाम बताना. So this is Maham Faraz and she is sitting besides me. She'll be my co-host today for this talk, and apart from that we have Saida Rafia and Farooq Hussain Saab, who is sitting besides me. I welcome you all to Ibn Mukhla Center of Traditional Arts. ये department around 10 years ago established हुआ था by Saida Rafia. Happens to be the first student of this department and she's with us, and today we will be discussing about one of her miniature paintings that she quite recently completed, and apart from that we have Farooq Hussain, and he has completed a Siyah Kalam Neem Rang painting. We will be getting into the details in a bit. उसके अलावा I would like to tell you about the painting process. वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज थोड़ी देर तक. तो let me move on to Saida Rafia. First, I will ask you a couple of questions about your journey so far. So how did you find miniature? Tell me a bit about it. It's a very amusing story. 10 years ago, once upon a time, I was a very happy person and clueless about art, and I did know the whole team that set up Hastoniist. As a matter of fact, I knew the parents, and therefore I knew the junior lot. And one day I get a call from one of the senior team members that Rafia, you should come over and join the miniature class. And there was silence from my side, and I said, right. And I didn't know what miniature was. I had never held a brush in my hand. I'd never drawn anything. I didn't know how to draw, and I thought painting was really boring for old fudge pots. And considering I knew them on a very personal and deep level, and I knew the parents, I didn't think it was right to just say an outright no on the telephone. So I agreed to sort of come over and see them in person and explain my inability to join miniature. Anyway, on the day that I was summoned, I arrived and I tried to explain to Faiza. It was just me and Faiza, big class. And I tried to explain to her that, it's just not my thing, and I'm really sorry, but I'll help you find other students, or whatever, how you put it politely. So Faiza just said, well, you're here now, because I used to live around an hour's drive to town. Since you're here, why don't you just do the first exercise? And again I said, right, first exercise. Am I supposed to draw the Mona Lisa or what? So she gave me this exercise. It was a very mechanical sort of exercise of draw boxes 1 inch by 1 inch and start drawing lines and squiggles and stuff like that. And there was this enormously long pencil that she gave me to do those. I'd never held that sort of a pencil. And I started filling in the boxes as Faiza had instructed. And I was amazed because some magic took place, and I actually could draw the line, and the line drew me in. I don't know how to explain it, but I enjoyed it so much, simply put, that I kept doing it, and I was amazed to find that I could draw a line and not cross on the other line. It was an amazing experience. It was a simple exercise, but for me it was
a profound experience about myself that I was capable of drawing lines that synchronize, that are parallel, and then there are those wavy lines that she had asked me to do, and I could do those as well. Not very well, I'm sort of flattering myself here, but I actually could draw lines. And to me, just drawing a line was amazing. And that's how miniature found me, and I found miniature and I fell in love. And the rest is all history. That's one. It was that one line. Yeah. I'll ask the same question with Farooq Saab, but before moving on to that question, I would like to show the paintings that we will be discussing about both the artists today, ताकि एक ग्राउंड को यहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश कर दें, तो हम सबको पता हो वेयर वी आर हेडिंग टू। तो ये एक तस्वीर है जो कि पर्शियन स्टाइल में ओरिजिनली ये यहाँ पे मौजूद है। ये किताब में से मैंने एक तस्वीर खींची है। तो दिस इज़ अ पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट जिसको फारूक साहब ने नीम रंग स्याह कलम में रेंडर किया है। तो इनसे हम लोग कुछ टाइम में हम इनसे पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था इसके बारे में, लेकिन अभी कुछ एक और सवाल है अबाउट फाइंडिंग मिनिएचर एंड हिज जर्नी। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर है वो सईदा रफ़िया साहिबा की है, जो कि ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स की, और इसमें कभी कभार मुझे मुश्किल होती है ढूंढने में कि इसमें ओरिजिनल कौन सी है और सईदा जी की कौन सी है। एंड इवन दिस मॉर्निंग व्हेन आई zoomed into one of the scenes, एक छोटा सा चंक जो था, एंड आई couldn't believe कि इसमें से ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा है, but it's so well done and the colors are so nice. So we will get to these two paintings today और इनको हम डिस्कस करेंगे। But coming back to Farooq Saab, how did you find miniature? Tell us about your story. मेरी स्टोरी जो है वो सईदा रफ़िया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाय प्रोफेशन तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन शौक़ से बचपन से मैं पेंट कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। और जिस तरह नॉर्मली बच्चों का एक वो होता है, पहले पेंसिल आप यूज़ करते हैं, कलर्ड पेंसिल्स, फिर एट सम टाइम यू फाइंड वाटर कलर्स, और फिर उसकी वेरिएशंस, पोस्टर कलर्स और इस तरह की चीज़ें। तो वो मैं थ्रू आउट करता रहा। इन 2000s then I started कि I thought कि I should switch to oils। तो 2000 क्योंकि सुना हुआ था कि आर्ट फॉर्म जो पसंद था वेस्टर्न आर्ट, वो मेनली ऑयल्स में था। तो 2000s में फिर मैंने ऑयल्स में काम करना शुरू किया, और मुझे एक ख़ास तरह का आर्ट पसंद था, और वैसे ही आर्ट में बनाने की कोशिश भी करता था, वेस्टर्न इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट, पेंटरली स्टाइल। और तो यू कैन सी ये कुछ मेरा पुराना काम है, 2000s 2010-15 टाइप का इस तरह का काम है। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ये तस्वीरें बेचने की आदत नहीं थी, घर में लगी हुई हैं, या कोई कहता था कि दे दें तो आई जस्ट गिफ्टेड रिटर्न। ये मेरे बच्चों की तस्वीरें, ये मेरे चारकोल में बनाई हैं, और नाउ दे आर ग्रोन अप। ये मेरी सबसे पहली ऑयल पेंट है। यू कैन सी के इसके अंदर प्योर कलर्स लगे हुए, कोई मिक्सिंग नहीं है, लेकिन स्टाइल वही थिक बोल्ड ब्रशेस वाला स्टाइल है जो मुझे फर्स्ट टाइम आई एक्सपेरिमेंटेड। हाउएवर आई फाउंड के, और ये तकरीबन आखिर वाली तस्वीर है जो इस पर दिखा रहा है, थोड़ा सा मैच्योर हो गया स्टाइल मेरा। तो ये मैं इस पर पेंट करता रहा, और ओवर टाइम, लेकिन ये कि मेरा काम आई फाउंड के कुछ कम होता जा रहा है। इन लास्ट 5-7 ईयर्स बहुत थोड़ा पेंट किया, मे बी साल में 2 तस्वीरें पेंट की, और एंड देन आई रियलाइज्ड के इसके पीछे वजह क्या है। एंड आई रियलाइज्ड के एक तो मैं बिल्कुल आइसोलेशन में काम कर रहा था, मेरे पास साथ कोई लाइक माइंडेड आर्टिस्ट नहीं थे, क्योंकि बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, लिहाजा ऐसा भी नहीं कि कोई आर्ट स्कूल में पढ़ा हूँ तो आपके पुराने कोलीग हैं जो एक आर्ट कम्युनिटी है, किसी कम्युनिटी से कनेक्टेड नहीं था। तो ये बड़ा ड्रॉबैक था, आप किसी से काम शेयर नहीं कर सकते, किसी का काम देख नहीं सकते, उसे सीख नहीं सकते। तो बिल्कुल एक जो टू एंड फ्रो जो कम्युनिकेशन थी वो नहीं थी, और एग्जिबिट भी कहीं नहीं करना, वो अपने घर में लगा लिया, रिश्तेदारों को दे दिया। तो और
सेकेंडली ये कि आई फाउंड कि इस किस्म के आर्ट में, क्योंकि यू कैन सी कि ये रियलिस्टिक आर्ट है, रिप्रेजेंटेटिव आर्ट है, एक ख़ास चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टाइल जो भी हो उसका, जिस तरह भी इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल है जो मुझे पसंद है या जो भी है, तो इसके अंदर कहने की चीज़ें जो हैं वो आई फेल्ट के बड़ी लिमिटेड सी हैं। जो अब इस तस्वीर के अंदर व्हाट यू कैन सी के जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, एक तो ब्यूटी है इस सीन की, और एक में भी कि मेरा स्किल या मेरी द वे आई कैन एग्जीक्यूट इट, आर्टिस्टिक एबिलिटी एंड नथिंग मोर। तो ओवर टाइम ये जो दो चीज़ें मैं कन्वे कर रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था, समहाउ ये मुझे लिमिट करने लगी एंड मेरे लिए काम में अपील कम होने लगी। तो जब मैंने हस्तोनीस को डिस्कवर किया तो इन अ वे ये दोनों जो लिमिटेशंस मेरी थी, जिन्होंने कि मेरे काम को भी कम कर दिया था, वो दोनों ही एड्रेस हो गई। सबसे पहले तो एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी मिल गई, जिसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ सिमिलर डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, कोई बिल्कुल स्टार्ट में है, कोई ज़रा लेट है, कोई बहुत सीनियर स्टूडेंट इस तरह पे जी हैं, और लाइक माइंडेड हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा रहा। और आई फाउंड अ वेरी गुड, वेरी जेनरस टीचर, जो कि जिनके पढ़ाने का अंदाज़, फैज़ा जी, पढ़ाने का अंदाज़ भी वो मुख्तलिफ था। तो और उनके पढ़ाने के अंदाज से जो मेनली जो चीज़ निकली वो ये थी कि आई रियलाइज्ड कि आर्ट के अंदर सिर्फ ब्यूटी और सिर्फ अपने आर्टिस्टिक स्किल को कन्वे करने के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कही जा सकती हैं। देयर आर आइडियाज़ जो कि आप कन्वे कर सकते हैं, डीपर मीनिंग्स, कुरानिक कससुल अंबिया, इस तरह की चीज़ें, मिस्टिक टेक्स्ट जो हैं, मिस्टिक आइडियाज़, उनको आप या डीपर मीनिंग्स उनको भी कन्वे कर सकते हैं। तो व्हेन आई फाउंड दिस, तो ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज्ड कि आई कुड पेंट अगेन। ऑल्दो कि टेक्निक बिल्कुल मुख्तलिफ है इसके अंदर। आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर देयर इज़ नो लाइन। ऑयल्स के अंदर ट्रेडिशनली आप लाइन ड्रॉ नहीं करते, आप थिकेस्ट ब्रश इस्तेमाल, मतलब फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं और सबसे बड़ा ब्रश यूज़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड मिनिएचर्स के अंदर आप सबसे बारीक ब्रश इस्तेमाल करते हैं, सबसे बारीक पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, ब्रश स्ट्रोक्स आइडियली नज़र ही नहीं आते उसके अंदर। तो इट्स अ बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है, लेकिन दिस इज़ द वे आई केम टू दिस प्लेस एंड इसकी वजह से देन आई स्टेड हेयर और काम करता रहा। तो ये दो चीज़ें, मतलब दिस इज़ माई जर्नी, जो कि मतलब और भी आई एम श्योर लोग इससे रिलेट कर सकते होंगे, लेकिन दिस इज़ द वे आई केम टू दिस प्लेस एंड टू दिस आर्ट। दैट्स ब्यूटिफुल। अच्छा, यहाँ पे आई हैव टू ऐड कि what's the process of learning for a miniature painter, how to become one? Basically this is a traditional art form, and traditional art forms जितने भी हैं, they demand time, they demand consistency, they demand a lot from you। और उसके अंदर ये है कि you have a very small canvas most of the times। आप बैठे हुए हैं and then you are practicing your art and छोटा सा, मतलब इतनी पेंटिंग है, sometimes it gets bigger and I have been working on canvases which were big in A2 size or even bigger। तो लेकिन ये है कि एक मतलब it's more about the technique जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और वो टेक्निक इट्स अ वेरी स्लो टेक्निक एंड इट्स बेसिकली focuses on build up, like building on top of something which already you have laid down, और फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर। So you can't go wrong if you think of it like in that way, in that sense that you can always build on top of it, right? तो जब आपको एक वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वट एवर रॉन्ग वेयर एवर इट कैन गो, आई कैन ऑलवेज फिक्स इट, सो दैट मेक्स यू वेरी एम्पावर्ड। और दूसरा ये है कि मिनिएचर पेंटिंग में जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, ही और शी सिट्स डाउन एंड दे, जो पहला सबक होता है वो होता है पेंसिल बनाना। तो you have to really sit down and you have to make your pencil, you have to pick up a cutter, और फिर आप पेंसिल को तराशते हैं, बैठते हैं वहाँ पे तराशते हैं, और आपका मजाज थोड़ी देर बाद थोड़ा सा तंग आ जाता है उस चीज़ से, और वो पेंसिल टूट जाती है।
साथ कहते हैं कि चलो एक और बनाओ, ये बड़ी है पेंसिल, ये बनाओ, ठीक है। वो फिर आप बनाते हैं उसको, जब एक परफेक्ट उसके ऊपर एक लेंथ पे पहुंचती है, वो फिर आपका थोड़ा सा मजाज चेंज होता है, कटर थोड़ा सा ऐसे जाता है और वो पेंसिल टूट जाती है। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि इसको इतना प्रेशर चाहिए, इसको इस टाइप का स्ट्रोक चाहिए, ब्लेड को इतनी दूर से पकड़ूं, पेंसिल को ऐसे घुमाऊं या क्या करूं। सो उस एक पॉइंट पे आपकी इतनी ज़्यादा लर्निंग हो जाती है कि वही चीज़ फिर आपकी प्रैक्टिस में आपके साथ मूव करती है। और व्हेन आई वाज लर्निंग, आई वाज प्रैक्टिसिंग, तो आई यूजुअली टेल माय फ्रेंड्स जो यहाँ पे सारे बैठे भी हुए हैं काफ़ी सारे, आई टेल देम कि देयर वाज ओनली वन पॉइंट जो कि आया आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो एंड यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, and one fine day it just reveals in front of you, it reveals itself in front of you कि भाई ये इस तरह, मैंने इस तरह से होना है और ये प्रैक्टिस है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जर्नी ऑफ आवर आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग्स के बारे में हम तबसरा करेंगे कि वो क्या चीज़ थी। उसके अलावा लाइन पे कुछ बात हुई थी। लाइन बेसिकली, हम जब एक लाइन खींचते हैं, लाइन बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में एक कनेक्शन है, एंड व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग तो वो जो एक कनेक्शन है दो पॉइंट्स का, वो कभी इस साइड पे डिज़ोल्व होता है, कभी इस साइड पे डिज़ोल्व होता है तो वो कनेक्शन हम उसको रीइंफोर्स करते जाते हैं बार बार। वो कभी डिज़ोल्व हो रहा है, उसको फिर हम लोग रीइंफोर्स करेंगे, वो लाइन ख़त्म हो रही है, उसको फिर लेकर आएंगे, फिर ख़त्म हो रही है, फिर लेकर आएंगे, अनलेस और अनटिल वी आर एट अ सर्टेन स्टेज जहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, और इसके अंदर आप खुद को डिस्कवर कर रहे होते हैं, राइट? बिकॉज यू आर सिटिंग देयर, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग लाइक countless hours you're putting into it, or you find yourself eventually. हमारे यहाँ जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम है, जो अभी करंट एजुकेशनल सिस्टम यहाँ पर है, they want you to curate original artworks, they want you to think originally, they want you to bring something on the table which is out of the box all the time. Like it really pushes you to a burnout phase after a certain amount of time, right? लेकिन ट्रेडिशन में ऐसे है कि we are always copying the master. तो हमारी पहली जो मश्क होती है वो हमेशा यही होती है कि मास्टर ने काम कर दिया है, उसको कॉपी करो, right? You will learn a lot out of it. So what is resonating with you, just copy it, right? उसके अंदर कलर्स हैं, उसके अंदर लाइन के डिसीजंस हैं, उसके अंदर फिगर्स के डिसीजंस हैं, उसके अंदर कॉम्पोजिशन के डिसीजंस हैं। So when you sit down and you have made a decision कि ये पेंटिंग है जो मैंने बनानी है, and that painting is going to take the next 6 months or maybe a year or maybe 2 years out of your life, you will learn something out of it eventually. तो अब हम मूव करेंगे, हाँ, इसमें इसका लर्निंग आउटकम फिर क्या होता है वो मैं बताना भूल गया। इसका लर्निंग आउटकम ये होता है कि व्हेन यू कॉपी सर्टेन मास्टर्स, सो इवेंचुअली यू फाइंड आउट योर ओन कलर्स, जो कलर्स आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, योर ओन क्वालिटी ऑफ लाइन जो आपको पसंद है, योर कॉम्पोजिशन, योर फिगर्स, योर फ्लोरा एंड फौना जो आपको पसंद है। एंड देन जब आप मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स इस्टेब्लिशिंग योर ओन बॉडी ऑफ वर्क, you have already built on top of what the masters have already done, and you have taken the key points out of that and then you put that into your own practice. So that is the starting point for you in the art world when you start working in tradition. तो सईदा रफ़िया, आप हमें बताइए कि आपकी जो पेंटिंग है इसके बारे में आप हमें एजुकेट करें। ये आपने क्यों सिलेक्ट की, क्या हुआ, क्या प्रोसेस था, व्हाई डिड इट रेजोनेटेड विद यू, और फॉर श्योर इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम आउट ऑफ योर लाइफ।
Most of the time, at least my experience has been that I've never really given it much thought. I think that is because of the sheer ignorance that I have of miniatures and all that. This particular painting, just I came across it, and it was the animals that caught my eye, and I decided to just take it up because of the animals, and there was nothing more to it. And I drew it out, I did the pencil line and started painting it. Not for a moment did I realize what a complicated thing I had taken on. And it is only, the credit goes to Faiza, who punctuated my learning with her little lectures and her anecdotes and the parables that she used to give, that I realized what this painting is really all about and how many layers there were to it. And it was, again, I go back to that one line that I drew on that simple exercise that Faiza gave me. And this was all about the straight lines and the curvy lines and the colors, the vibrance. It all got me, and each time another layer was revealed to me because Faiza had something to say to me. For instance, these horses that you see, I didn't know what the meaning of these horses were. Faiza told me that these are wild horses and it is your ego, your untamed ego. And this whole painting is a whirlwind of self-desire and human qualities that is in play with each other to bring the man from one level to another and take it all the way to the borders of the unknown. The mountain right on top is that of Mount Kaf, which is the boundary between the seen world that we see and the unseen that is beyond our earthly realm. It just kept becoming deeper and deeper from the flat painting of animals that I first saw because of the colors. Like a child, I just saw the colors and the animals. But over time, it was it was Faiza who helped me see the painting and myself. And I think later on I will explain to you exactly what this painting is about and the effect that it's had on me, and how I learned so much while doing it. I think we should start with that. Okay, if you like. We should get into that. Okay. This particular painting is by a Hindu Mughal miniature painter named Miskeen. He was a 16th century gentleman, and it's been taken out of one scene out of Fariduddin Attar's epic poem Conference of the Birds, Mantakul Tair. Now this particular poem, the title is in Arabic, but the poem, which consists of over 4,700 rhyming couplets, the first of its kind in that time, is all in Persian. As a matter of fact, Jalaluddin Rumi considered Fariduddin Attar, and specifically this epic poem, one of his main inspirations. So that says a lot about this one particular poem. This is a scene in one of the stories and the parables that Fariduddin Attar relates, and it's about the birds that get together and they have to, or they want to appoint a king for themselves, and that proves to be a difficult task for them. So they ask the hoopoe bird, who is the wisest of them all, to give them guidance and direction. The hoopoe bird tells them that in order to find their king or see the king and therefore appoint him, they need to undertake a journey.
And this journey is long, arduous, treacherous, and full of obstacles. And in this journey, the birds, who incidentally in this particular painting represent or symbolize human desires, worldly human desires. And so the Hoopoe bird says to these birds representing human desires of this world, of this realm, that you will also have to cross the 7 valleys. What are these 7 valleys? इस पर ज़रा दिखाइएगा. Now to find it, huh? So these are basically the 7 valleys around which this whole, the poem revolves around just these 7 basic themes. And these themes or these valleys or these stations are the stations of that journey, that spiritual journey that a Sufi undertakes to find or to be with the divine. So the first, I'll briefly just go through it. The first is the value of quest. एक तलब होनी चाहिए. You need to have that yearning. Otherwise, you cannot take the next step. It's only if you want does the next door open. With that yearning, once you have that yearning and you commence your journey, you reach the valley of love. This is what the Hoopoe bird is now telling all these birds as well. In the valley of love, all reason, worldly reason and logic goes out. It loses all its value. You only go towards love, the divine love. And divine love requires no reason, no logic, no condition. And so on. In the valley of knowledge, for example, which is the next step, you lose all value for the worldly knowledge. It stands nowhere. It doesn't have any use for you, for example. Physics, chemistry, math suddenly dissolves away and you enter into a realm where there is a different type of knowledge. Now, of course, this requires a lot of study, something I have not done. I'm not a master of it, so I certainly will not delve into it and try and explain. But you go on all the way until you reach the valley of the truth. This is fana. This is total annihilation. This is when you become nothing. After crossing all those valleys and of learning how to detach yourself, of learning how to detach from your ego, that you reach the valley of truth, which is haq, total annihilation, and you are nothing, and you are with unity, you are with the divine love. You are nothing and you are everything. You are nothing, and you are everything. Yeah. And you know. So this is what the Hoopoe bird was telling these birds, the human desires. Now the human desires, after listening to all this, are filled with repetition. Who wants to give up wealth? Who wants to give up the comforts of today's world? So some of the birds actually die of fright. How can I give up this? How can I do this? The human desire, the heart desires a lot, the mind. Some birds start making excuses. I'm small, I'm frail, I don't think I can take this journey. You know, I have family at home, can't leave. It is this particular scene that Miskeen has captured. And if you see on top of Mount Kaf, you see that crow, that represents your self-doubts and your fears. When you're supposed to embark upon this journey, this is the point where the self-fears, self-doubts, and you come up with various excuses on how not to embark on this journey because your ego is not releasing you. You still want those fancy clothes, you still want the comforts of life, you still want to be looked upon as somebody. So this particular, and of course the poem goes on to everything. I recommend all of you read it, and there is an ending to it which is very dramatic. So this painting is that point. So on one hand you have the birds that are representing and symbolic of the human desires,
And on the other hand, you also see animals. Now, the animals here represent the human virtues. For example, the lion, the majesty that you can have if you embark upon the journey. There is majesty to look forward. The tiger, the tenacity, the strength that will take you through. The fish, which is fluid, lives in another realm, meaning that what you actually see on top is not really the truth. There is much more beneath. Yeah. The snake, that we generally think of Satan and devil, here it represents transformation. The snake sheds its skin. Just as you learn, you go one step forward. When you acquire a piece of knowledge or you learn a new skill, there is a definite profound change in the inner paradigm. So here that shift of paradigm, that transformation is represented by the snake. So this whole interplay is telling your whole life story of how the Sufis embark upon a treacherous path. On one hand, there are the human desires ruled by the ego. On the other hand, you also have these virtues. So look below the realm where the fishes are. You might find the truth and embark upon this journey. Do not look at the crow, but look at the Mount Kaf and take that great leap. Thank you. Thank you so much. And about this painting, yeah. About this painting, I found when I was studying it, I found it very ironic that how the crow is placed on top of the Mount Kaf, which you said that it's the boundary. So it's literally the boundary, and it's the ego that's on the top of it. So यहाँ आप उसके आ रहे हैं या पार हैं. So ये वो वाला moment है, and then the crow is looking directly into the eyes of the Simurgh, and the Simurgh is looking directly into it. कि they are just there. लेकिन ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, और इसके कलर्स का इस्तेमाल, जिस तरह से इसके अंदर बैलेंसिंग हुई है हर चीज़ की, और जो कंपोजिशन, इट्स ब्यूटीफुल. इसके साथ ये भी आपको बता दूँ, इट्स अ मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसके अंदर हम लोग रेंडरिंग ज़्यादा है इसके अंदर, मतलब ग्रेडेशंस, ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल. इसका कलर पैलेट भी थोड़ा मुख्तलिफ है पर्शियन से. पर्शियन स्कूल में वी हैव मोर फोकस्ड लाइन वर्क और फ्लैट वॉशेस. तो हम लोग ज़्यादातर जो हमारे फिगर्स होते हैं और जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग पहले एक फ्लैट वॉश देते हैं, और फिर उसके अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन वर्क, लाइन क्वालिटी होती है, जो कि एक पर्शियन स्कूल की खासियत है. और मुग़ल स्कूल में ये होता है, येस, लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट्स द बाउंड्री, दैट इज़ द डिफाइनिंग फैक्टर. बट थ्रू आउट द प्रोसेस व्हेन वी अप्लाई कलर, और फिर उसके अंदर हम लोग रेंडरिंग का एलिमेंट लेकर आते हैं, वी डिफ्यूज़ द लाइन. और फिर ये होता है कि एक लुका छुपी का खेल शुरू होता है लाइन के साथ. कहीं पे लाइन वाज़ेह है, कहीं पे लाइन गायब हो गई है, और फिर वो वाज़ेह हो गई है. सो वो एक खूबसूरत खेल है, जो कि मे बी आई कैन पास ऑन सम पेंटिंग्स, और उसके अंदर मैं आपको दिखा सकूँ शायद. तो ये एक तस्वीर है जो कि स्याह कलम में, एंड आई एम ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग यू टू द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. सो दिस इज़ स्याह कलम, विच मीन्स ब्लैक वाटर कलर. और ये हम लोग गुलेरी का ब्रश होता है, जिसके साथ हम लोग इसको पेंट करते हैं. दैट्स अ सिंगल, मतलब मल्टीपल हेयर होते हैं, लेकिन उसकी टिप बिल्कुल एक सिंगल हेयर पे जाके कन्वर्ज होती है. तो इस कागज़ को एक बेसिक टी वॉश दिया, जिससे इसकी सफ़ेदी ख़त्म हो गई है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लैक के साथ इसको ओवरऑल रेंडर करते हैं. सो इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ पेंसिल रेंडरिंग, बट ये ब्रश के साथ, वाटर कलर के साथ रेंडर हुआ है. और अगर आप इसको फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं पे लाइन थी, और फिर वो एकदम से ख़त्म हो गई, और फिर वो एकदम से रिवील हो गई. सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, आई कैन शेयर दैट विथ यू. और दूसरा ये जो पीस है, आई एम पासिंग इट फॉरवर्ड, इट्स अ नीम रंग पेंटिंग, वर्क इन प्रोग्रेस अगेन. But I want you to see the line on this one, and also the first step, which is making sure that the drawing is correct.
तो ड्राइंग मैंने पेंसिल में की हुई है. आई मेड श्योर दैट एवरी सिंगल थिंग इज़ इन प्लेस एंड ताकि मुझे बाद में मसला ना हो. एंड देन आई हैव डन अ लिटिल बिट लाइन वर्क ऑन इट विद ब्लैक. सो गदरंग इज़ अ डिफरेंट मीडियम. जब स्टूडेंट स्टार्ट करता है मिनिएचर पेंटिंग तो पहले उसको एक डब्बों वाली एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हम लोग टोनैलिटी को स्टडी करते हैं. देयर आर 7 टोन्स जो कि हम लोग एक ही पेंसिल से अचीव करने की कोशिश करते हैं. बेसिकली वी आर एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ दैट वन पेंसिल. तो 7 का वैसे ही एक बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक फिगर है और हम लोगों ने एक में से 7 टोन्स निकाल लिए हैं. सो दैट्स द थिंग. तो आप खुद भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उस एक मश्क के थ्रू. और फिर उसके बाद आप कुछ लाइन की एक्सरसाइजेस करते हैं जिसके अंदर लाइन, सीधी लाइन है, आड़ी लाइन है, तिरछी लाइन है, गोल लाइन है, काफ़ी सारी लाइंस की आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं. फिर उसके बाद ये मूव ऑन टू पेंसिल ड्राइंग और एक तस्वीर आपको कहा जाता है कि आप किसी भी मास्टरपीस को सिलेक्ट करें और उसको पेंसिल में आप उसको रेंडर करें. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्याह कलम का. ये जो अभी मैंने स्याह कलम पास ऑन की है. तो स्याह कलम में बेसिकली आपको पहली दफ़ा ब्रश के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वाटर कलर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. तो ट्रेडिशन में अगर आप देखें तो खूबसूरती ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप उस्ताद आपके लिए काम कर रहा है. आपको बस अंडरस्टैंड करना है. उस्ताद आपको एक पॉइंट पे जब वो समझता है कि ओके इट्स अबाउट टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दे विल इंट्रोड्यूस यू टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ इवन एडवांस. तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता कि अच्छा वाई आर वी डूइंग अ पेंसिल व्हेन वी शुड बी डूइंग अ कलर पेंटिंग, राइट. तो कलर इज़ द लास्ट थिंग जो कि हम करते हैं और क्यों करते हैं वो हमें जब एक प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर हमें समझ आती है कि अच्छा इसलिए करते हैं. तो हमारी उस्ताद फ़ायज़ा साथ में बैठी हुई हैं और मुझे भी स्टूडियो में ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गया मिनिएचर के स्टूडियो में. और वैसे हंसो नहीं, इसमें मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, 4-5 साल होने को हैं. तो मैंने भी खुद भी यही किया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो यही करते हैं दैट दे ट्राई टू डाइव, दे ट्राई टू स्किप सम सर्टेन स्टेप्स एंड दे ट्राई टू डाइव इनटू द नेक्स्ट थिंग. वो मैंने बहुत दफ़ा किया बट इवेंचुअली वो समझ यही आई कि वो जब तक आप उस एक प्रोसेस से नहीं गुजरोगे ना तो आप स्टेप बाय स्टेप उस लर्निंग कर्व को नहीं समझोगे. तो स्याह कलम के बाद आपको एक और टोनैलिटी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि नीम रंग होती है. स्याह कलम नीम रंग, दैट्स लाइक अ डुओ टोन पेंटिंग. या समटाइम्स यू कैन ऐड अ बिट मोर कलर्स, लेकिन ट्रांसपेरेंट रहते हो आप उसके अंदर. एंड देन द फाइनल स्टेज इज़ द गदरंग पेंटिंग. गदरंग का प्रोसेस इट्स अ ओपेक फुल कलर पेंटिंग, जैसे कि ये सईदा रफ़िया ने की हुई है. इट्स अ फुल कलर पेंटिंग एंड इवन आई हैव वन ओवर हियर which I am working on. I'm working on this one. तो I can pass this around. इसके अंदर भी ये है कि जो प्रोसेस है when you start a गदरंग is basically you have to select the colors. तो पूरा साल जब आप मोनोटोन में काम कर रहे हैं, पेंसिल में काम कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग फैसिनेटेड बाय डिफरेंट प्रिंट्स ऑफ डिफरेंट मास्टरपीसेस, और आप म्यूज़ियम्स में जाके काम देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा जब मेरी बारी आएगी मैं ये करूँगा या करूँगी जो व्हाटएवर. तो जब आप उस स्टेप तक पहुँचते हैं तो पहला आपसे जो डिमांड की जाती है वो ये होती है कि आप अपने कलर तो बनाएं. तो ये एक कलर की स्टडी है जो कि मैंने की थी. इसके अंदर मैंने सारे मेरे पास घर पे जितने भी कलर्स मौजूद हैं ये पहली लाइन जो है ये उन प्योर कलर्स की है. फिर उनके अंदर वाइट ऐड करके तो ये मैंने पूरी लाइंस मैंने यहाँ पे डेवलप की हुई हैं. सो इट टुक मी एन एंटायर नाइट ऑफ ऑलमोस्ट 12 or 16 hours टू क्रिएट दैट बिकॉज आई वाज क्रेजी. तो थोड़ा सा मैंने इसको स्टडी आपके सामने पेश करना मुनासिब समझा कि आपको तक समझ आए कि जब हम कलर्स में डाइव इन करते हैं तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमने कंसिडर करने होते हैं. इट्स ऑल प्री प्लान्ड. हम जब कहते हैं ना कि अच्छा ये आर्टिस्ट ने इतना प्यारा काम कैसे कर लिया, इसको बैलेंस कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो हम उस प्री प्लानिंग को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि वो क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था.
अच्छा, दूसरी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग मिनिएचर पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि पर्शियंस एक स्पेसिफिक कलर पैलेट को एक एरा में एक्सप्लोर कर रहे थे, और जब नेक्स्ट एरा स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर शायद कोई नए कलर्स इंट्रोड्यूस हो गए, और कलर्स की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। एंड दे वर मोस्टली लोकल मटेरियल्स, जो लोकलाइज मटेरियल्स थे, इस रीजन में इस रीजन के यूज़ हुए, उस रीजन में उस रीजन के यूज़ हुए, और मुगल्स का भी यही था कि वो भी लोकलाइज मटेरियल्स को यूज़ कर रहे थे। तो दैट्स अबाउट इट, अबाउट द 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स जो कि हम लोग एक्सप्लोर यहाँ पे करते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती हैं, और थ्रू दीज पेंटिंग्स यू फाइंड योर सेल्फ, और it takes a lot of time, it takes a lot of energy, lot of patience, and lots of days and nights of working, but वो eventually you find your colors, you find your style, you find everything. अच्छा, अब हम फारूक साहब के तरफ जाएंगे और उनकी पेंटिंग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये दोनों स्कूल्स, 2-3 स्कूल्स के बारे में समझाना, 2 स्कूल्स के बारे में समझाना ज़रूरी था। उसके अलावा पेंटिंग स्टाइल्स के बारे में समझाना ज़रूरी था, क्योंकि फ़ारूक साहब ने जो अब काम किया है दैट इज़ ओरिजिनली अ गदरंग पेंटिंग विच इज़ अ फुल कलर पेंटिंग इन पर्शियन स्टाइल, बट ही हैज़ rendered it in स्याह कलम नीम रंग, and the line is basically kind of Persian, but the rendering style is Mughal. तो इन्होंने इन्फ्यूज़ किया है दोनों स्कूल्स को, और जो एक ओरिजिनली पेंटिंग कलर में थी उसको इन्होंने डुओटोन के अंदर रेंडर किया है। तो इनसे इस पेंटिंग के बारे में पूछेंगे, इस पेंटिंग के जर्नी के बारे में पूछेंगे। आप बताएं कि क्या, हाउ वाज इट? सबसे पहले तो मैं इस पेंटिंग की बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल पेंटिंग की। आप सब ने एक बुक का नाम सुना होगा और पाकिस्तान में मिलती है, कससुल अंबिया के नाम से एक किताब है जो मिलती है यहाँ पे। नॉर्मली उर्दू ट्रांसलेशन हमें मिलती है, पता नहीं वो कितनी वो है। ओरिजिनली ये किताब 12th सेंचुरी में इसाक बिन इब्राहिम नीशापुरी साहब ने लिखी थी, और इसके अंदर तमाम अंबिया के जो वाक़यात जो कुरान में बयान हुए हैं उनको इन्होंने तफसील से लिखा है। क्योंकि कुरान में आप कोई भी अगर वाक़या देखते हैं तो अमूमन उसके अंदर, क्योंकि कुरान का मकसद कुछ और है, तो उसमें तफसीलात, जगहें, लोगों के नाम और जो ऐसी डिटेल्स जिनका कोई कुरान के मकसद से, बुनियादी पर्पस से ताल्लुक़ नहीं है, वो अल्लाह मियां ने बयान नहीं की। उसके बाद ज़ाहिर है कि जब कुरान नाजिल हुआ तो लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा कि इस वाक़े के अंदर ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। तो एक बॉडी ऑफ नॉलेज इकट्ठा हुआ जिसके अंदर वही जो वाक़यात थे उसके अंदर हुज़ूर की सेइंग्स और उसके बाद सहाबा इकराम ने जो बातें बताईं वो सारी फिर तफसीर इब्न कसीर और इस तरह की चीज़ों में इकट्ठी हो गई। तो वो जो कुरानी वाक़यात थे वो बड़ी तफसील से इकट्ठे हो गए। उनको इकट्ठा किया 12th सेंचुरी में नीशापुरी साहब ने। और क्योंकि ये जो पर्शियन और इवन मुग़ल जो मिनीचर का आर्ट है ये बेसिकली मैनुस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन है। एक किताब के कुछ वाक़यात को या एक किताब के सीन्स को आपने इलस्ट्रेट कर दिया और उसका बुक का हिस्सा बन गया। आजकल आपको मिनीचर जो हैं वो स्टैंड अलोन अलहदा नज़र आते हैं, लेकिन उस टाइम पे मिनीचर वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ बुक जिस पर एक टीम काम करती थी। तो सफ़वी पीरियड के अंदर 16th सेंचुरी में वेरी क्लोज टू 1590 देयर वाज एन आर्टिस्ट अली असगर। उस पीरियड में इस कससुल अंबिया की मल्टीपल कॉपीज़ मैनुस्क्रिप्ट्स बनाए गए। कुछ के अंदर 20-25 तस्वीरें थीं, कुछ के अंदर 200-300 तस्वीरें थीं। तो ये एक बड़ा रिच मैनुस्क्रिप्ट था जो कि उस ज़माने में बनाया गया। और उसके बाद ये कुछ इसका पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया। तो आज ये स्टैंड अलोन फोलियो के तौर पे एग्जिस्ट करता है। इसकी हिस्ट्री बड़ी एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि समवेयर बिटवीन 1590 एंड 1890 देयर वाज अ फ्रेंच कलेक्टर, बेसिकली वाज अ ज्वेलर लेकिन आर्ट कलेक्टर भी था, हेनरी वेवर इस तरह का नाम था उनका। उन्होंने इसको एक्वायर किया। उन्होंने इस्लामिक आर्ट्स पूरी ऑटोमन, मुग़ल, पर्शियन, सेंट्रल एशियन सारी की सारी एक्वायर की। पूरी मैनुस्क्रिप्ट बुक एक्वायर की और हर तरह का आर्ट एक्वायर किया। तो उन्होंने वो आर्ट एक्वायर किया और उसके बाद विद इन वर्ल्ड वॉर इट जस्ट वैनिश्ड। पीपल थॉट कि शायद ये डिस्ट्रॉय हो गया।
तो वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा ये सरफेस हुआ और उस कलेक्शन को फिर यूएस में है एक स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, उन्होंने इस पूरी कलेक्शन को, हेनरी वेवर की कलेक्शन को ख़रीद लिया उससे, मतलब निगोशिएट किया और वो वहाँ पर परमानेंट डिस्प्ले में है। तो ये तस्वीरें अब क्योंकि इनके अंदर ना तो बुक का पार्ट है, ना आर्टिस्ट ने नाम लिखा है, ना डेट लिखी हुई है, तो दे आर टॉपिक्स ऑफ एक्टिव रिसर्च कि ये किस ज़माने का होगा, इसका स्टाइल किस बंदे वाला है, पिगमेंट कौन सा यूज़ किया गया, पेंटिंग का स्टाइल क्या है। तो उस हिसाब से तो ये इसकी हिस्ट्री है और अभी ये वहाँ पर डिस्प्लेड है। तो यही समझा जाता है कि 16th सेंचुरी के अंदर जो मल्टीपल मैनूस्क्रिप्ट्स कससुल अंबिया के बनाए गए, उनमें से एक बड़ा रिच मैनूस्क्रिप्ट जो था, जो कि बाद में डिवाइड होकर तो बढ़ गया, उसका हिस्सा ये तस्वीर है। अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि इस तस्वीर में व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर। ये बेसिकली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो सूरह नमल में कुरान में बयान हुआ है। और उसके अंदर जो बुनियादी वाक़या वो यहाँ से शुरू होता है कि हज़रत सुलेमान का दरबार इन ऑर्डर है और हज़रत सुलेमान का कुरान में भी मेंशन है कि ही हैड डोमिनियन ओवर लाइक एनिमल किंगडम, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जन्नात, अफरीत और इंसान सारे उनकी किंगडम में थे। तो वही आपको नज़र आता है कि वो सारे, अगर आप नीचे से बॉटम राइट से शुरू करें तो एनिमल्स आप देख सकते हैं, सारे मल्टीपल एनिमल्स हैं। और फिर बॉटम लेफ़्ट से ऊपर जाएं तो आपको जिन और माफूकुल फितर चीज़ें नज़र आएंगी, जिन, मलाइका भी कह सकते हैं, परियां भी कह सकते हैं, मतलब ये एक पूरा एक वो है जो कि इंसानों के लिए। फिर बीच में आपको एक इंसान भी नज़र आ रहे हैं जो जिन साहब ने पगड़ी बांधी हुई है। और थ्रोन के ऊपर एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इस पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबा की मलका बिल्कीस जो हैं, दे आर सिटिंग। और वाक़या कुरान के अंदर ये है कि एक दिन वो पूरा का पूरा दरबार लगा हुआ था और हज़रत सुलेमान फाइंड्स के वो हुदूद नहीं है, तो ही सेज़ कि हुदूद किधर है, अगर उसने मुझे सही रीज़न ना, वैलिड रीज़न ना बताई तो मैं उसको सज़ा दूँगा। तो इतने में हुदूद आ जाती है और फिर उनको बताती है कि नहीं, मैं आपके लिए बड़ी ख़ास ख़बर लेकर आई हूँ, फ़लाँ जगह पर, प्रॉबेबली यमन या ऐसी किसी जगह पर एक मलका हुकूमत करती है और वहाँ पर वो लोग खुदा की इबादत नहीं करते। तो उसने आकर बयान किया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, फिर मेरी तरफ से उसको पैगाम भिजवाओ कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ और तुम मेरी हकीकत को और खुदा को तस्लीम करो। तो वो फिर मलका सबा, मलका बिल्कीस, जिसका नाम था, वो अपने वज़ीरों से कंसल्ट करके शी सेज़ के पहले तो मैं तोहफ़े भिजवाती हूँ। तो वक्त भिजवाया तोहफ़ों के साथ, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे तोहफ़े नहीं चाहिए, जो मुझे खुदा ने दिया हुआ वो मेरे पास इससे कहीं ज़्यादा है, तो मुझे तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं है। अब वो परेशान होती है शी सेज़ कि अगर तो बड़ा ज़बरदस्त बादशाह लगता है और अगर हमने हिकमत से ना चले तो फिर हमारे साथ कुछ ज़्यादती भी हो सकती है, क्योंकि बादशाह जब वो अटैक करते हैं तो फिर बादशाहों के साथ बुरा होता है। तो देन शी अंडरस्टैंड्स कि ये हकीकत क्या है, खुदा की हकीकत क्या है, ये पैगंबर सच्चा पैगंबर है। और उसके बाद बड़ी विज़डम के साथ ये कुरानी बाकी वाक़यात जिसके अंदर कौमों के दबाव होने की कहानी है, जहाँ पर शी रियलाइज़ कि ये ट्रुथ है और इन सबमिशन वो आती है इनके पास, और कुरान में यहाँ पे वाक़या ख़त्म हो जाता है। कसुसल अंबिया के अंदर जो बताया गया वो ये है कि अल्टीमेटली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मैरिज मलका बिल्कीस, और उनके सामने ये जो दाढ़ी वाले साहब बैठे हैं, इनका नाम है आसिफ बिन बरखिया। ये उनके वज़ीर थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंसान थे। और कुरान में ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये तफसीर इब्न कसीर के अंदर है और मतलब ऑथेंटिक नाम है। और यही वो प्रॉबली साहब थे जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने को पता लगा कि मलका बिल्कीस चल पड़ी है वहाँ से मेरे पास आने के लिए, हुदूद ने बताया, तो ही सेट के अब मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ। और ज़ाहिर अपनी माइट भी दिखा रहे थे उसमें अपनी कि क्या कुदरत है मेरी। तो ये आज के तो उसका तख्त कौन ला सकता है उसके आने से पहले। तो जिनों में से एक ने कहा कि मैं जब तक आपका दरबार बर्खास्त होगा मैं ले आऊँगा। तो लेकिन फिर एक कुरान में आया है कि एक इंसान ने जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा कि आप मैं पलक झपकते में ले आऊँगा। एंड ही इज़ दैट पर्सन आसिफ बिन बरखिया, जिनका जो मतलब जिनका जिक्र बाद में आया है उसके अंदर तफसीर इब्न कसीर में और कससुल अंबिया के अंदर वो आ गया। तो उन्होंने पलक झपकते के अंदर उसको मंगवाया। तो ये इस तस्वीर की बेसिकली हिस्ट्री है, मतलब बड़ी इसमें रिच सिम्बॉलिज़म है जानवरों का,
जानवर जहाँ पर आपको वैसे तो जानवर फिज़िकल चीज़ें हैं, लेकिन जानवर दो तरह के सिंबल्स को ज़ाहिर करते हैं। जानवरों के अंदर हर जानवर का अपना वस्फ होता है, एक एक दो दो वस्फ, जिस तरह लाइक हिजबर साइड के बल्कि रफ़ी जी साइड के शेर के अंदर ताकत है, घोड़े के अंदर और ख़ासियत है, गाय के अंदर, हर जानवर का डिफरेंट सिविलाइजेशन में सिम्बोलॉजी रही है। तो और उनकी एक मैथोलॉजिकल सिम्बोलिज्म रहा है कि क्या मीनिंग है इनका। तो एक तो ये आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर खुदा के औसाफ को ज़ाहिर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक इंसान के नफ्स के अंदर क्योंकि खुदा के सारे औसाफ हैं, तो इंसान के नफ्स के अंदर भी ये सारे औसाफ रिफ्लेक्टेड हैं। अगर आप इसमें देखें तो इसमें ड्रैगन भी मौजूद है। हज़रत सुलेमान के तख्त के बिल्कुल नीचे देयर इज़ अ ड्रैगन, इसी जो आधा नज़र आ रहा है, और इसने तख्त को पकड़ा हुआ है। इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सिम्बोलॉजी है। इसकी दो तरह से इसको सिम्बलाइज़ किया जाता है। एक तो यूरोपियन ड्रैगन जो आजकल आप मूवीज़ देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ में भी आता है और प्रॉपर मूवीज़ में ड्रैगन जो है वो ड्रैगन इज़ और हमेशा आपकी ग्रीड को, आपकी नेगेटिव इमोशंस को शो कर रहा है, पॉजेसिवनेस को शो कर रहा है। और नॉर्मली वो क्या गार्ड कर रहा होता है, समथिंग जिसका कि उसके पास कोई इस्तेमाल नहीं है, सोने पर बैठा होता है, एंड देयर इज़ अ वर्जिन ही इज़ गार्डिंग, यूजलेस बोथ ऑफ देम फॉर हिम। लेकिन उसकी ग्रीड उसको जो है ना, उसको हीरो आता है और उसको फिर वर्जिन को बचाता है और सोना उससे वो लेता है, वट एवर। ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न जो ड्रैगन है वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप इसी ड्रैगन को, जो कि आपके नफ्स की नेगेटिव चीज़ को शो करता है, ग्रीड को शो करता है, एक मरतबा आप उसको कंट्रोल कर लें तो फिर वो आपकी पावर बन जाता है। और चाइना के अंदर जो ड्रैगन है वो एक जस्ट राइटफुल ओनर या किंग की पावर को शो करता है। यहाँ पे ड्रैगन उसी फॉर्म में या उसी मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, और उसने किंग की पावर का ये भी है कि वो थ्रोन भी इसी चीज़ को, किंग की पावर को शो करता है। उसने थ्रोन को पकड़ा हुआ है और वो थ्रोन के नीचे है, ऊपर नहीं है। तो ये बड़ी पावरफुल सिम्बोलॉजी है इसकी। और इसके अंदर यू कैन सी इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं ऊपर। बर्ड्स की अपनी सिम्बोलॉजी है। देयर इज़ अ सीमुर्ग ऑल्सो, ये जो सीमुर्ग है, इनमें से हर एक की बर्ड की मज़ीद सिम्बोलॉजी है। बर्ड्स इन जनरल रिप्रेजेंट, जिस तरह आप कह सकते हैं, डिवाइन मैसेंजर्स। दे आर लाइक ऑपोजिट ऑफ द सरपेंट। सरपेंट जिसने कि हज़रत आदम और हवा को एलिजेडली या वट एवर उनको वरगलाया था, ही इज़ स्टक टू अर्थ। वो ज़मीन से, मतलब हमेशा उसकी वैली ज़मीन पर रहती है। बर्ड्स जो हैं वो आसमान और ज़मीन के बीच में उड़ते हैं। तो ये वो चीज़ है जिसने कि ज़मीन की पुल को या नेगेटिव आपकी जो चीज़ें हैं उनको, उसको ओवरकम कर लिया और हवा में है। तो लाइटर बीम्स हैं। तो ये सारी सिम्बोलॉजी है इसकी। तो इट्स फुल ऑफ सिम्बोलॉजी। और ये मुझे इस वजह से इसकी मतलब कुरानिक जो वाक़यात हैं वो वैसे भी मुझे मतलब दे स्टे विद मी, तो इस वजह से मैंने इस तस्वीर को वो किया। फाइनली आई लाइक टू से कि इसमें मैंने टेक्निक्स क्या इस्तेमाल की हैं। बेसिकली तो ये ओरिजिनली पर्शियन है। पर्शियन के अंदर आप नॉर्मली फ्लैट कलर्स होते हैं, और जिसे आप रेंडरिंग कह लें या शेडिंग कह लें, ग्रेडेशंस कह लें, थोड़ी होती हैं। लेकिन हमने इसको रीइंटरप्रेट किया है ओरिजिनल कलर। उसके अंदर आर्टिस्ट के पास बड़ी फ्रीडम थी। वो दो फिगर्स जो साथ साथ बैठी हैं, एक को एक कलर, दूसरे को दूसरा कलर दे दें, एंड दे आर सेपरेट। मगर हमारे पास वो फ्रीडम नहीं थी। तो हमने उनको सेपरेट करने के लिए हमने, जिसे हमारे इसमें मिनिएचर की ज़ुबान में पर्दाख्त कहते हैं या शेडिंग, ग्रेजुअल शेडिंग कहते हैं, पर्दाख्त इस्तेमाल की। और नॉर्मली यू कैन सी के जो लाइनें हैं वो अवेलेबल तो हैं, लेकिन लाइन एक तरफ से लाइन है और दूसरी तरफ से वो शेड होकर मिली हुई है। तो हमने उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया। जो स्किल्स इस्तेमाल किए गए, जो मैंने सीखे इसके साथ साथ, एक तो ये कि जो आपको जो ओकर टाइप कलर नज़र आ रहा है, बेसिकली इट्स टी वॉश। और टी वॉश जो आप करते हैं या प्रॉपर वॉश का तरीका वो ये कि आप फुल लोडेड ब्रश के साथ वॉश करते हैं। फिर जब आप उसको ग्रेडेशन देना शुरू करते हैं या उसकी पर्दाख्त करते हैं या शेडिंग करते हैं, तो देन यू यूज़ द ड्राई ब्रशिंग टेक्निक। और ड्राई ब्रशिंग टेक्निक जो है वो भी एक मतलब मुकम्मल समझें कि आप ईमान लाने के वाली बात है कि वो उसके ऊपर आप इतना थोड़ा कलर लगाते हैं, उस कलर को साफ़ करते हैं, और वो इट इज़ एक्चुअली ऑलमोस्ट ड्राई ब्रश। और फिर आप उसको करते हैं, और जब आप लगाते हैं तो आपको उस वक्त नज़र नहीं आता, थोड़ी देर बाद नज़र आना शुरू होता है। इस कदर स्लो बिल्डअप है इसके अंदर पूरी चीज़ का। तो ड्राई ब्रशिंग की टेक्निक इस्तेमाल की। और स्याह कलम आपने देख रहे हैं कि जहाँ पर ब्लैक कलर है वो कहीं पर फ्लैट है बालों में, और बाकी जगहों पर ब्लैक कलर की शेडिंग की गई है।
उसके अलावा यू कैन सी कि ये जो मलाइका हैं इनके परों के अंदर गोल्डन कलर यूज़ किया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो सर के ऊपर जो हेलो है, फ्लेमिंग हेलो, इसमें गोल्ड इस्तेमाल किया गया, प्रॉपर 24 कैरेट गोल्ड इस्तेमाल किया गया। शेल गोल्ड है, इसको ब्रश के साथ इस्तेमाल किया गया। इनके थ्रोन में भी क्योंकि ज़ाहिर है सोने का ही होगा, तो इसको भी हमने गोल्ड इस्तेमाल किया है। तो गोल्ड को इस्तेमाल करना वो भी एक अच्छी टेक्निक थी जो मैंने सीखी, मुझे हमारी उस्ताद ने सिखाई। डेमो दिया हर चीज़ पर, और हमारे साथ पेशेंस के साथ 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जहाँ फंसे उसको आगे चलाया। और गोल्ड डस्ट जो एक और वो है, वो हमने, अगर आप हाशिया देखें जो ब्लू कलर में है, उसके अंदर भी पहले तो लाइट ब्लू कलर की वॉश है और उसके ऊपर फिर ये गोल्ड डस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसको फिर उसके ऊपर छिड़क के और उसके बाद ग्लू के साथ चिपकाया जाता है। तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं। एक चीज़ में सिम्बॉलिज्म में रह गई है, इस बार आप थोड़ा सा इनके वो यहाँ सेंट्रल फिगर्स को ज़रा बड़ा करेंगे, हाँ थोड़ा सा ऊपर, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग, हाँ ज़रा सा ऊपर, नहीं मैं नीचे वो फिगर आ जाए ज़रा। इसमें आप फिगर्स को देखें तो जहाँ पर मलका बिल्कीस है, इनके आपको कफ्स नज़र आ रही हैं, आपको इनके हाथ नज़र नहीं आ रहे। और ये आसिफ बरखिया जो सामने वाले हैं, इनका भी आपको एक हाथ जो ज़रूरत की वजह से निकला हुआ वो तो है, दूसरा हाथ कफ के अंदर है। तो ये एक तरीका था कि दिखाने का कि बड़े के सामने जब आप बैठे हैं तो हाथ खोल कर नहीं बैठते, और अगर आपका सबमिसिव अंदाज़ है या जब यू सबमिट टू समवन अथॉरिटी तो अपने हाथ फिर आप, या तो आपने यही चीज़ उसमें भी देखी होगी, टर्किश जो मौलाना रोम का है उसमें भी हाथ को अपने छुपा कर रखते हैं। तो वही सिमिलर चीज़ इसके अंदर है, और ये कंसिस्टेंटली यूज़ होती है पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर। तो दिस इज़ लिटिल बिट टाइम थोड़ा, तो इतनी बात करते हैं। थैंक यू। एक सिंबोलॉजी, अच्छा एक सिंबोलॉजी मैं भी बता दूं यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वो हिस्सा है इसका। तो कोई भी मिनिएचर पेंटिंग जो ट्रेडिशनली बनी होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। तो उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, क्योंकि इन्होंने हाशिए का नाम लिया तो मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि हाशिया क्या है। तो ये जो ब्लू बॉर्डर है, दिस इज़ कॉल्ड हाशिया, और फिर उसके अंदर ये वाइट वाला एक और पतला बॉर्डर चल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अ जिदवल, ठीक है। एंड देन दिस इज़ द मेन रेक्टेंगल विच कंटेन्स द पेंटिंग। सो ये जो आपका पेंटिंग वाला एरिया है ये आपका आलम ख़याल है, ठीक है। एंड देन दिस पतला जो बॉर्डर है ये मालाकुत है, आलम मालाकुत, द एंजेलिक रेल्म, ठीक है, द एंजेलिक रेल्म, तो जबरूत, सॉरी। एंड देन द मेन बॉर्डर दैट इज़ द डिवाइन नॉलेज, जहाँ से आप चीज़ें थ्रू द एंजेलिक रेल्म आप अपने ख्याल में फेच कर रहे हैं। सो इट्स समथिंग जो कि आपको मिल रही है, राइट, एंड यू आर पोर्ट्रेइंग इट इन दैट सेंट्रल रेक्टेंगल, सो यू आर फेचिंग इट फ्रॉम समवेयर। तो आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख्याल में। सो दिस इज़ व्हाट इट सिम्बलाइजेस। थैंक यू। Thank you so much. My silence should tell you that I am the newest student in the community. अब हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे और दोनों आर्टिस्ट से और हिस्बर से भी इवेंचुअली पूछेंगे what was the transformation before and after their paintings, how has their work changed them. As I had mentioned, my humble beginning, the line, and how the magic appeared, and how I transformed, and thank you. So, the same way, I would like to say that each time you acquire new knowledge or you acquire a new skill, there is a definite paradigm change within you. It may be small, it may be big, it may be profound. Sometimes it's so subtle that you don't even realize that something is happening inside you. But these changes are constantly happening inside you, whether you're conscious of them or not. In my case, through my years of miniature here, on a macro level, I would say that Huston East offered me a package, a whole package of people, of ideas, and more than that, it offered me the environment and the ambience that really led me
to the micro learning where Faiza was waiting. And she held my hand, and that is where I learned how to peel off layers. How did she do that? In a very subtle way. We'd all be sitting there painting, talking. It's a lovely environment. And Faiza would intervene with some parable or some information or some piece of knowledge which was of no stress, and it just flowed. And it flowed into the paintings where I learned about myself and what I was thinking initially and what I'm thinking now. What happiness was and what happiness is. What it could have been and what it actually is. So that's a lot of learning, and I really have to thank Faiza here, because that's to find out what makes you, your inside, your heart happy, and the difference of what happiness was, what you considered, and where you have come. That has been my journey, to discern between the different levels and the qualities of happiness in life. Thank you. The Simurgh actually means 30 birds. Si is 30 in Persian and Murgh is birds. So what happens at the end of this journey that these birds take, whereas so many of them undertook this journey, only 30 survive. And when they come to the abode of the Simurgh, which the Hoopoe bird had told them to journey towards, that is the end, the abode of the Simurgh, they will see their king. However, when the 30 birds go into the abode of the Simurgh, they see nothing. They only see a reflection of themselves, which is the Simurgh, which basically means it's all inside you. The strength, the virtues, the divine is all inside that heart. Thank you. इसमें उल्लू है. Ullu is the symbol of the love of wealth, of richness. ठीक है? You have the peacock. The peacock is vanity. वो सवाए अपने और कोई चीज़ नहीं देख सकता. फिर इसमें आ जाता है, can you just थोड़ा सा ज़रा, which other bird there is, then there is a nightingale. You can also see that finch over there. Yes, ma'am. ठीक है, that is also all about oneself. ठीक है, the duck is all about the frivolous things in life. Going out for dinner, having lots of friends, etc., etc., having a fancy car. That is what the duck represents. We have the frog over there, just next to the baby crocodile. That's an amphibian. It's neither here nor there. Now, what does that symbolize? That symbolizes your transition, that you are able, your ability to transcend, because it lives beneath the water, and it comes to the other realm of the ground. Once it goes beneath, you cannot see it. Again, it takes you back to the thought that there must be something more than what I can see. There is more realms beneath and above and around. Does that answer your question? Sorry? With the snake, you will be telling something negative. You see, Something positive. everything is, you cannot sort of archetype one thing. The snake has its qualities. There is the face of God everywhere. So there is the good and the evil. The evil is just the distance from God. The rest, the beauty is God. So to say that it was Satan and everything, we don't know.
We don't know what God meant when it was Satan. We have to peel off some layers to see what it was. Maybe it was just the ego. The curiosity, the human vice led her to be curious and let go of the virtue of being pure and step into a lower realm. But that is something to be thought about. That is what religion is all about. Religion may connect you, it is the ligament between you and God. That's where actually the Greek word comes from. But it is for us to introspect and not damn everything. If the snake is bad, it's bad. Now here you could also see the scorpion. The scorpion is bad, right? It's as bad as the snake. But what does it? What did Miskeen mean when he drew this scorpion over there? This was vigilance. You have to be vigilant. You can't step on a Scorpio. The human being has to be vigilant. So the Scorpio here represents the virtue of being vigilant. And vigilance is very important in crossing the 7 valleys. It's focus. So the bad Scorpio that can sting you so badly is actually good. You have to bring out the good in you. Everything is good. When you said peacock represents vanity, so what is the positive portion of that? The birds here are symbolically representing the human desires, the worldly desires. The worldly desires are not bad per se. You've been given life. You've been given all these material things. The point is not to be stuck in the material things. The point is to be cognizant of the actual reason why you were sent on earth, which is to journey back to God. I mean, there is food, but you need to be a glutton. You have to have a balance, and you have to reason with yourself and find out and question your very existence. Why do I exist? What is the reason? Why have I been given sustenance? It's not to be stuck here and keep eating. It is to undertake this journey back unto the divine. Vanity is self-thought stronger. Vanity whether you're stuck, you see. For example, the parrot over here. The parrot likes its cage because it yearns for immortality. Therefore, it's going to sit in the cage and not step out because it's afraid if it steps out, there's danger and it might get killed or it might die. So it's best to stay in this kuएं का डड्डू बने रहो and do not undertake any journey to better yourself or to find the divine or to just a basic instinct to explore the world. I mean, that's the lowest journey that a human being can take, to explore the world. But even in that, you will see and you will get the yearning, and the start point is there. Any other questions? At what point after painting this did you start reading the drawing itself? Not in the early stages. I was quite happy doing my colors and horses and little lions. Actually, what triggered off is at one point Faiza asked me, if you were given another chance to go back to college, would you really go on to the corporate side or would you opt for miniature? And I think it was a very genuine question that she asked. And my response was immediate, I'd go in for miniature. And at that point, I questioned myself later on, when I think in hindsight, what was it? Why would I choose miniature? And she had already mentioned the Conference of the Word, and we had been discussing it. And she also asked me, do you have that book? And I did have that book. I had bought it, but I had never delved into it. That's when I went on the net first, because that was easier. And I read about the whole history. I read about Miskeen. I read about the couplets that Farid Attar had, the poem, and the synopsis of various people.
and I of course made a humble attempt to read the poem itself. They are parables and that I'm familiar with. They are legends and they are myths that I'm familiar with. But there's a lot that I still don't understand. But yes, I have embarked upon that journey of reading it. And I strongly recommend just go on the internet and read about the conference of the birds. It's very thought-provoking. It makes you think. It's very soothing. It's very pleasing to the soul. It's a balm, I would say. And you will see yourself in it. And you will be able to identify where you are today in the worldly realm. And I think you will also understand more about yourself, which is so important. Thank you. Oops, sorry. Thank you. मेरा जर्नी या मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आई वुड से कि 2 एस्पेक्ट्स हैं उसके। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं वेस्टर्न ऑयल ट्रेडिशन को पसंद करता था, जो जाहिर है कि एक तरह से मॉडर्न ट्रेडिशन है और जो कि प्राइमरीली रियलिटी को शो करती है। उसके बाद उसके पेंटिंग के स्टाइल्स हैं, पेंटरली स्टाइल है, इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल है, मल्टीपल स्टाइल्स हैं उसके। तो मैं एक ख़ास स्टाइल को पसंद करता था जिसके अंदर लाइट भी रियलिस्टिक है, क्योंकि वो एम्बिएंट लाइट से, मास्टर्स का काम सारा लाइट के मुताबिक है। चीज़ें पर्सपेक्टिव में हैं, मतलब आपको पर्सपेक्टिव सबसे पहले यूरोपियन पेंटिंग्स में, तस्वीरों में नज़र आता है। चीज़ें प्रॉपर पर्सपेक्टिव में हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी पर्सपेक्टिव उस वक्त एप्लीकेबल है, और चीज़ें जो हैं वो अपनी राइट प्रोपोर्शंस में बनी हुई हैं। तो इट्स अ रियलिस्टिक सीन। अब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम, और हमेशा से मेरी मिनीचर पेंटिंग स्पेशली पर्शियन मिनीचर के बारे में ये थी कि ये कुछ सिंपलिस्टिक है, थोड़ा सा प्रिमिटिव है। शायद 14th, 15th, 16th सेंचुरी के अंदर इनको बेचारों को पर्सपेक्टिव का पता नहीं था कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। कलर्स इनके बड़े ब्राइट लगे हुए हैं, ये तो रियल कलर्स ही नहीं हैं। रियल कलर्स तो लाइट से डराइव होते हैं। अब ये सारी वो बातें हैं जो कि प्रॉब्ली 18th सेंचुरी में यूरोपियन मास्टर्स जो भी उस ज़माने के थे उन्होंने वो की। तो मैं इन ख्यालात के साथ चल रहा था। अब पर्शियन या मिनिएचर पेंटिंग्स में आप एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उनका साइज़ बड़ा है, उनके साथ एक उनका मुरीद बैठा है जो कि छोटा सा है, या बादशाह बड़ा है, और वो तो ये सारी डायकोटमीज़ हैं जो कि मुझे महसूस होती थी कि ये तो अजीब सी चीज़ें हैं। मतलब ये प्रिमिटिव आर्ट है थोड़ा सा, और बस देखने के लिए ठीक है, इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू होगी, कोई इतनी पुरानी 400 साल पुरानी तस्वीर है। तो व्हेन आई केम टू हस्तन ईस्ट एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ फायज़ा जी, सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन तो ये थी कि आई केम टू अंडरस्टैंड कि ये एक प्रॉपर वैलिड डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म है, और जो मकसद यूरोपियन आर्टिस्ट्स का 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में या यूं आज तक है, वो इसका मकसद नहीं है। वो रियलिटी को डिपेक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर रियलिटी को जितना आप रियल शो करें, आर्टिस्टिक इफेक्ट उसमें डाल दें, लेकिन जितना आप उसको रियलिस्टिक तरीके से शो करते हैं वो उतना अच्छा आर्ट है। इसके अंदर दे आर नॉट शोइंग रियलिटी, बेसिकली मीनिंग्स हैं, हायर मीनिंग्स हैं। वो कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, कुरानी वाक़यात भी हो सकते हैं। अगर वो फिक्शन भी है तो वो भी सुपरफिशियल नहीं है, वो भी मिस्टिक या सूफी फिक्शन है। फोक से ताल्लुक़ है उसका, तो फोक भी हमारा सारा का सारा डिराइव्ड है, हमारा और इस्लामिक वर्ल्ड का डिराइव्ड है फ्रॉम द ट्रेडिशन, रिलीजियस ट्रेडिशन। तो इसका जो आर्ट फॉर्म का जो मकसद है, वो इसका मकसद बिल्कुल डिफरेंट है, और ये रियलिटी शो नहीं कर रहा। और इसके अंदर जो स्टाइलाइजेशन है, लोगों की ख़ास तरह की शक्लें हैं, मर्द और औरत की बॉडी में कोई फ़र्क नहीं है, एक बंदा बड़ा है, एक बंदा छोटा है। तो वो एक बंदा बड़ा इसलिए क्योंकि उसका मर्तबा ज़्यादा है। अगर वो एक पैगंबर बैठाया है, पैगंबर दिखाया गया है, या एक पीर को या मुर्शिद दिखाया गया है, तो उसका मर्तबा ज़्यादा है, इसलिए उसको बड़ा दिखाया जा रहा है। तो ये प्रिमिटिव नहीं था, ये इंटेंशनल स्टाइलाइजेशन थी चीज़ की। और स्पेशली पर्सपेक्टिव आप देखेंगे, पर्शियन में पर्सपेक्टिव बहुत अरसे तक फॉर मंथ्स आई कुडंट अंडरस्टैंड कि यार ये क्या पर्सपेक्टिव है। एक बिल्डिंग सामने से भी नज़र आ रही है, वही ऊपर से भी नज़र आ रही है, वही दाएं बाएं से भी नज़र आ रही है। तो ये तो अजीब सी को, मतलब इनको पेंटिंग करनी नहीं आती थी, मतलब ये मेरा ख्याल था। तो अभी
अंदाज़ा हुआ कि ये ऑल साइड का पर्सपेक्टिव या पाइल अप पर्सपेक्टिव है, इसका मकसद एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये सबसे बड़ी, इसमें शुरू में आई हैड अ नंबर ऑफ डिस्कशंस विद माय टीचर एंड हिस्बर, रफ़िया जी और लोगों के साथ डिस्कशंस हुई, जिसमें मैं बहुत अरसे तक, तो फॉर मंथ्स आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू लाइक एक्सेप्ट दिस आर्ट फॉर्म कि यार किस किस्म का आर्ट फॉर्म है। बुक्स पढ़ी, फिर डिस्कशन की, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, दिस इज़ अ वैलिड आर्ट फॉर्म, और ये इंटेंशनली ऐसा है। इन लोगों के अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी की कमी नहीं थी, इनके पास पिगमेंट भी थे, इनको रियलिस्टिक कलर्स भी पता थे, सब कुछ था, ये जान के इन्होंने ऐसा किया। तो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंडली जो आई रियलाइज्ड कि ये ट्रेडिशनल आर्ट है। ट्रेडिशनल किस तरह है, क्योंकि ये बुक से जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो ओरिजिनेट होता है ये मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन है, जो बुक्स लिखी गई, जिस तरह लाइक एसेट कसुसुल अंबिया है, इन्होंने जिक्र किया मंतिक तैर है, जो कि अगेन एक कुरानी, उसके ऊपर थीम कुरानी कुछ से लिया गया है। उसमें कहानी हम सब इंसानों की है, बर्ड्स को एज सिम्बल्स शो किया गया है और उनकी जर्नी को शो किया गया है, जिसमें से हम सब मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई रियलाइज्ड कि ये ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, और ट्रेडिशन से मेरा जो मतलब है वो नॉर्मल फोक ट्रेडिशन या लोकल ट्रेडिशन नहीं, बल्कि रिलीजियस ट्रेडिशन है, उससे जुड़े हुए हैं। ट्रेडिशन में जो आपकी बुक्स हैं, जिनका अमूमन जो सोर्स है वो या तो कुरान है या वो हदीस है, उससे निकले हुए वाक़यात हैं, या सूफ़ी टेक्स्ट है या फोक है, वो सारा का सारा ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है हमारे पूरे इलाके में। तो और जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसका मकसद भी फ़र्क है, उसकी पेस भी फ़र्क है। अगर आप एक नॉर्मल ऑयल पेंटिंग बनाते हैं तो मे बी के मेरा अपना वो ये था कि मैं 1, 2, 3 दिन के अंदर पेंटिंग ख़त्म करनी है, वरना वो ख़त्म ही नहीं हो रही, आपको मूड चेंज हो गया, बस ख़त्म। अब इसके अंदर आई हैव डन अ फ्यू पेंटिंग्स, जिसके अंदर इस पेंटिंग ने मेरे 5 महीने लगे हैं इस पेंटिंग में, और मैं मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर ये है कि मैं एक पेंटिंग को 2 या 3 सेशन से ज़्यादा पेंट कर ही नहीं सकता था। जितनी पेंटिंग्स आपको हिस्बर ने दिखाई मेरी, वो सारी की सारी प्राइमरीली एक सेशन में पेंट हुई हुई है, सिर्फ फिनिश दूसरे सेशन में हो गए, बेशक ऑल नाइटर है या 24 घंटे हैं वॉट एवर, लेकिन आई न्यू कि मैंने इसको छोड़ा तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा और आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश इट। लेकिन इसके अंदर आई हैव बीन वर्किंग ऑन वन पेंटिंग फॉर 5 मंथ्स। इससे पहले एक मेरी पेंसिल की थी, उस पर आई वर्क फॉर लाइक 3 मंथ्स। अभी एक मैंने गदरंग प्रॉपर फुल कलर शुरू की हुई है, अब तक मुझे उस पर तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं। तो इसकी पेस भी फ़र्क है, और एक्चुअली इसकी पेस फ़र्क नहीं है, इसने मेरी पेस फ़र्क कर दी है। ये मेरी चेंज है, मतलब इसने मुझे स्लो डाउन कर दिया है, मेरे पर्पज़ या मेरा मकसद चेंज कर दिया है, और इसने मुझे स्लो डाउन कर दिया। और अगेन मतलब ये कि प्रोसेसेस भी मुख्तलिफ हैं, टेक्निक्स भी मुख्तलिफ हैं। तो ट्रेडिशनल आर्ट को समझना, उसके मकसद को समझना, वो सारी चीज़ जो है वो मतलब आई हैव रियलाइज्ड इन लास्ट 1 year और सो। और उसके लिए मैं टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक माई टीचर फैज़ा जी। शी इज़ वेरी जनरस, और क्योंकि शी इज़ जनरस, एवरीवन अराउंड हर इज़ जनरस। मतलब हर स्टूडेंट जो है मेरे से सीनियर जो है, ही इज़ जनरस। जो बात पूछें आपको, एक पूछते हैं वो आपको 2 बताते हैं, और हर बंदा जो है वो इस तरह। तो इनका भी शुक्रिया, मेरी उस्ताद का भी शुक्रिया, और हसनीस का भी शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने एक एनवायरनमेंट जनरेट की। हसनीस में भी वैसे तो सारे मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ कॉमन भी है उन सब में, जो हसनीस में आते हैं और यहाँ पर ठहर जाते हैं। तो उन लोगों में कोई चीज़ कॉमन भी है, आई कैन नॉट नेम इट एग्जैक्टली, लेकिन कोई चीज़ कॉमन है उनमें। फॉर द जस्ट एज अ साइड मजाक के तौर पे, हमारी मिनीचर की क्लास में देर आर मोर देन 70% पीपल आर पाइसिस। तो तो ये हिम इंक्लूडेड। तो दिस इज़ दी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मतलब जी ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट, ये वी फाउंड आउट इन द क्लास। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। I have graduated in information technology, and in 2019 or maybe 18, I don't remember it exactly because degree didn't do anything to me. तो उसके अलावा I started working as a graphic designer ever since I started my bachelor's, or by the time I graduated I already had like 4 years of on-hands experience in design. And after a few years of my graduation, I wanted to slow down because
डिग्री को इसीलिए मैंने परस्यू नहीं किया था बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. एवरी सिंगल पर्सन इन माई फैमिली इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिलीव मी. लाइक दे आर वर्किंग एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड एंड इतनी तेज़ लाइफ है. लाइक आज जो टेक्नोलॉजी है कल वो नहीं है, परसों कुछ और है, फिर अगले हफ्ते कुछ और है. सो इट्स लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग समथिंग न्यू एंड द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इज़ लाइक रोबोटिक. So when I look at my cousins and everyone in my family, it's too robotic and वो मुझे समझ तो नहीं आती. और तो पैसा बहुत है that's what they talk about. But ये था कि I wanted to get out of that. तो मैंने डिज़ाइन में जंप किया था. ग्राफिक डिज़ाइन करते करते मतलब 3-4 साल जब गुजरे, I wanted to slow down even more. और because the expectations of the industry are too artificial and उसमें से मैंने निकलना था. तो फिर मैंने I decided that I will do something with my hand. और फिर मैंने ट्रेडिशनल आर्ट्स को मतलब परसू किया था. I started with fresco painting. उसके बाद illumination की एक उस्ताद हैं जो कि हस्तनीस के साथ ही हैं. She's from Iran and lovely teacher. उसके अलावा then I dived into calligraphy. 1.5 year with Ustad Imdad Ahmed Saab and Bhutta Saab. I learned a little bit of geometry from Danish and उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, everything was being built on top of everything और मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी कि क्या हो रहा है. तो ये एक जर्नी रहा है जिसके अंदर मैं अभी भी खुद को डिस्कवर कर रहा हूँ and that's it. That's about me. Yeah. God bless you.